चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि 12,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस की पहचान हसास की हैसियत से की गई है और उन पर करीबी नज़र रखते हुए वेबकास्टिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 30 तारीख को वोटिंग के लिए तमाम इंतजाम किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1.68 लाख पोस्टल बैलेट जारी किए जा चुके हैं। घर से वोट देने का वक्त ख़त्म हो गया और 26,066 वोटर्स ने इस सहूलत से इस्तेफादा किया। उन्होंने कहा कि 2,290 उम्मीदवारों में से 2,068 मर्द और बाकी खातून उम्मीदवार हैं। सीईओ ने कहा कि इंतखाबी ड्यूटी के लिए 2.5 लाख अमले को तैनात किया गया है, जबकि 45,000 रियासती पुलिस, पड़ोसी रियासतों से 22,000 होमगार्ड्स, मरकजी दस्तों की 375 कंपनियों के अलावा रियासत की स्पेशल पुलिस की 50 कंपनियों को तैनात किया गया है। ముందు ఆ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఇచ్చేసి వాళ్ళు పోస్ట్ ద్వారా పంపమని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉండేది. ఈసారి ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్లో పెట్టి చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు వరకు 1,31,000 ఎలక్షన్ డ్యూటీలో ఉన్న మందిని పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. పోలీస్ పర్సనల్ని 35,978 పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. మిగతా నాన్ గవర్నమెంట్ వర్కర్స్కి 1,115 పోస్టల్ బ్యాలెట్స్, టోటల్ 1,68,612 పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. పోల్డ్ నిన్న రాత్రి వరకు 96,526 పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ పోల్ అయినాయి, అంటే ఈ ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్లో. वज़ीर IT तारक रामाराव ने रैतु बंधु स्कीम की रकम को रोकने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने सुल्तानाबाद में रोड शो से खिताब करते हुए सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम के आगाज़ का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी पर वहां के किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने पर रैतु बंधु स्कीम ख़त्म कर दी जाएगी। రైతు బంధు ఆపిన సన్నాసి కాంగ్రెస్ పార్టీ కోటేస్తారా? గెలవక ముందే, అధికారం చేతికి రాకముందే ఇలా రైతు బంధును కాటగలుపుతుండ్రే. రేపటి రోజున ఉంచుతారా రైతు బంధును? ఆలోచించుండ్రి. అదే విధంగా మేమేమో స్కీములు చెప్తున్నాం. ఏం స్కీములు చెప్తున్నాం? గెలిస్తే బ్రహ్మాండంగా మళ్ళీ మా ఆడబిడ్డలందరికీ, ముఖ్యంగా కోడల పిల్లలకు కొత్త పథకం తెస్తున్నాం. కోడళ్ళు ఉన్నారా? ఇడ యాడున్నారు? అచ్చా, ఇటు దిక్కున్నారు, గట్టున్నారు. కోడలి పిల్లలకు శుభవార్త. మీకు డిసెంబర్ 3 తర్వాత, ఎందుకంటే మీరు కోపంగురు మా మీద, మా అత్తలకేమో పెన్షన్ రావట్టే మా సంగతి ఏందని. అందుకే మరి కోడలి పిల్లలకు శుభవార్త ఏంటంటే, మీ అందరికీ డిసెంబర్ 3 తెల్లారి నుంచి నెలకు 3,000 రూపాయలు ఇచ్చే కార్యక్రమం, సౌభాగ్యలక్ష్మి అనే కార్యక్రమాన్ని మీకోసం చాలు చేస్తున్నాం. మంచిదేనా పథకం? మంచిదైతే గట్టిగా సపర్లు కొట్టాలి కోడలి పిల్లలు. वज़ीर सेहत हरीश राव ने रैतु बंधु स्कीम के तहत रकम की जराई को रोक देने मरकजी इलेक्शन कमीशन के काम पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस की कमीशन से शिकायत पर ही इस रकम को रोका गया है। उन्होंने ज़हीराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आइंदा माह की 3 तारीख के बाद रियासत में एक मरतबा फिर KCR की हुकूमत बनेगी और फिर किसानों के बैंक खातों में ये रकम जमा करवाई जाएगी। ఎన్నికల క్యాంపెయిన్ కు చైర్మన్ గా ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ నిరంజన్ గారు దాని మీద దరఖాస్తు పెట్టిండు ఎలక్షన్ కమిషన్ కు. హరీష్ రావు రైతు బంధుకు పర్మిషన్ ఇచ్చింది ఎలక్షన్ కమిషన్ అని అంటున్నాడు. దీన్ని ఆపాలని చెప్పి ఎలక్షన్ కమిషన్ కు దరఖాస్తు పెడితే ఇవాళ మళ్ళీ వాళ్ళు ఆపమని చెప్తున్నారు. అంటే ఏందన్నట్టు? నోటికాడ బుక్కని ఎత్తగొట్టదా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ? ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీరు ఇస్తున్న కేసీఆర్ కు అడ్డం పడతారా? బిడ్డ ఎన్ని రోజులు ఆపుతారా నాయన? మీరు ఆపితే 3 తారీఖు దాకా ఆపుతారు. 3 తారీఖు తర్వాత మళ్ళా ఉండేది మా కేసీఆర్. 3 తారీఖు తర్వాత మళ్ళా రైతు బంధు పైసలు టింగు టింగు టింగున మా అకౌంట్లలో పడతాయి. బిడ్డ మీకు మాత్రం రైతులు గుణపాఠం చెప్తారు.
మాది రైతులతో ఓటు బంధం కాదు, మాది పేగు బంధం తెలంగాణ రైతులతో. सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से रैतु बंधु स्कीम की रकम को तकसीम करने की इजाज़त वापस लेने के मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और वज़ीर सेहत हरीश राव का किसानों का भला करने का कोई इरादा नहीं है, सिवाय लालच और फ़ख्र के रैतु बंधु के ज़रिए वोट हासिल करने का वो मंसूबा रखते हैं। इसका सबूत हरीश राव के तबसरों से सामने आया है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने रैतु बंधु की रकम तकसीम करने के लिए दी गई इजाज़त को वापस ले लिया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से पहले अहम फैसला करते हुए रैतु बंधु स्कीम की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा करवाने के लिए दी गई इजाज़त से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, जिसकी इजाज़त 2 दिन पहले कमीशन ने दी थी। इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इंतखाबी इदारे का यह फैसला एक ऐसे वक्त सामने आया जब वज़ीर सेहत हरीश राव ने इस स्कीम के बारे में खुलेआम ऐलान करते हुए इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने क़ब्ल अज़ीं अपने काम में तेलंगाना हुकूमत को रबी की फसल के लिए इस माह की 28 तारीख से पहले रैतु बंधु स्कीम की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा करवाने की इजाज़त दी थी। ताहम कमीशन ने हिदायत दी थी कि इसकी तशहीर ना की जाए। मंचरियाल में चिन्नूर मंडल में कांग्रेस और बीआरएस के कारकुनों में बहस और तकरार हो गई। बीआरएस उम्मीदवार बलका सुमन की आमद के पेश नज़र हुक्मरान जमात के कारकुनों ने कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम को रोक दिया। इस मौके पर दोनों जमातों के कारकुनों में बहस और तकरार हो गई। वहां मौजूद पुलिस ने कांग्रेस की इंतखाबी तशहीरी गाड़ी को आगे रोक दिया और इसको वापस भेज दिया। इस वाक़े पर कांग्रेस के कारकुनों ने शदीद बरहमी का इजहार किया। कांग्रेस के उम्मीदवार संपत कुमार की जोगुलांबा गढ़वाल जिले में रिहायशगाह पर आईटी अहदेदारों की टीम ने धावे किए। संपत कुमार आलमपुर हल्के से मुकाबला कर रहे हैं। आज सुबह आईटी के अहदेदारों और पुलिस के अहदेदारों की टीमों ने उनके मकान पहुंचकर तलाशी ली। जराये के मुताबिक मकान के खुफल तोड़ते हुए ये तलाशी ली गई। अचानक इस कार्रवाई से संपत कुमार की बीवी बेहोश हो गई, जिनको इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। बीआरएस की एमएलसी कविता ने कहा है कि रैतु बंधु मुसलसल जारी रहने वाला प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद इसके लिए मजीद मंसूबा तैयार किया गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के कायदीन की हिमा पर इस प्रोग्राम को रोका गया है। कांग्रेस कायदीन इससे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। వాస్తవానికి రైతు బంధు ఆన్గోయింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. 10 సీజన్లు ఇచ్చినటువంటి ప్రోగ్రాము. అది ఎన్నికల ముందు పెట్టినటువంటిది కాదు, ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో చెప్పినటువంటి ప్రోగ్రామ్ కాదు. ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత రైతు బంధు సపరేట్గా మేము ప్లాన్ చేసినటువంటిది. దాని ఫస్ట్ టైం ఈసీ వద్దు అన్నప్పుడే మాకు ఎందుకు అన్నటువంటి ప్రశ్న వచ్చింది. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు వెంటబడి రైతు బంధు నాపినారు. వాళ్ళకి ఎంత ఇన్సెక్యూరిటీ అంటే ఇప్పటికీ 10 కాలాల్లో 10 సీజన్స్లో 72,000 కోట్ల రైతు బంధును 65 లక్షల మంది రైతులకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మేము ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతోని రైతులంతా కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ వైపు, కేసీఆర్ వైపు ఉన్నారన్నటువంటి ఒక అభద్రతతోని కాంగ్రెస్ పార్టీ కంప్లైంట్ చేసింది. మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ లీగల్ సెల్ వెళ్ళి ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం. ఏమని అంటే ఇది మేము ఎలక్షన్లో మేనిఫెస్టోలో చెప్పింది కాదు, సపరేట్ ప్రోగ్రామ్ అని. దాంతో రిలీఫ్ ఇచ్చినారు. కానీ మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు వాళ్ళ యొక్క రైతు వ్యతిరేకతను చాటుకుంటూ రైతులను ఇబ్బందులకు గురి చేయడానికి, రైతులను నోటికాడి బుక్కను గుంజుకోవడానికి
మళ్ళీ కంప్లైంట్ చేసి రైతు బంధును ఆపడం జరిగింది. రైతు రుణమాఫీని కూడా ఆపడం జరిగింది. కొంతమందికి రుణమాఫీ ఇంకొంతమందికి అయ్యే లోపలనే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆపింది. ఇది కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క రైతు వ్యతిరేక విధానాన్ని మళ్ళా ఒకసారి వాళ్ళు రుజువు చేసుకుంటా ఉన్నారు. రైతన్నలందరూ కూడా ఓటేసే ముందట ఖచ్చితంగా మన నోటికాడి బుక్కను గుంజుకుంటున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని గుర్తుపట్టి ఓటు ద్వారా జవాబు చెప్పి వారికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయాల్సిందే కోరుతాం. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्का असम्बली नामपल्ली के विजयनगर कॉलोनी में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने बुजुर्ग राय दहिंदों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमारा अखलाकी फरीज़ा है कि बुजुर्गों से आकर मुलाकात करें। सदर मजलिस का मुख्तलिफ मकामात पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कई जगह पर उनकी गुलपोशी और शालपोशी भी की गई। यूपी के वजीर आला आदित्यनाथ ने कहा है कि तेलंगाना में लैंड और सैंड माफिया का राज चल रहा है। उन्होंने खानदानी हुक्मरानी का खात्मा करने की आवाम से ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कामयाबी पर बुलडोज़र हुकूमत बदनवानी का खात्मा करेगी। एलबी नगर कुतबुल्लापुर में आदित्यनाथ ने इंतखाबी मुहिम चलाई। तेलंगाना इंतखाबात के सिलसिले में नकद रकम मुफ्त में तकसीम की जाने वाली अशिया, शराब और सोने की जब्ती का सिलसिला जारी है। अब तक जुमला 709 करोड़ रुपए मालियत की अशिया जब्त की गई हैं। इनमें 282 करोड़ रुपए नकद रकम, 186 करोड़ रुपए के तिलाई जेवरात, 117 करोड़ रुपए की शराब, 39 करोड़ रुपए की मुनशियात और 83 करोड़ रुपए की मुफ्त की अशिया शामिल हैं। हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला ने वेंकटाद्री अपार्टमेंट, रूसा अपार्टमेंट और अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने राय दहिंदों से फ़र्दन मुलाकात करते हुए उनसे अपील की कि उन्हें कामयाब बनाया जाए। कई मुकामात पर राय दहिंदों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और मजलिस के हक़ में अपने वोट के इस्तेमाल का तयख़ुन दिया। इस मौके पर इब्तदाई मजालिस के सदूर व मुतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। याकुतपुरे के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने इंचार्ज हल्के याकुतपुरा यासर अरफात के साथ बानो नगर, कमान, कुरमागुड़ा और दीगर इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से फ़र्दन मुलाकात की और मजलिस के हक़ में वोट का इस्तेमाल करने की ख्वाहिश की। आवाम की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया और जगह जगह उनकी गुलपोशी की गई। मजलिसी उम्मीदवार हल्का चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने पुराना पुल और घासी बाजार डिवीजन्स के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए हक़ राय दही का इस्तेमाल मजलिस के हक़ में करने की अपील की। उनका जगह जगह इस्तकबाल किया गया। राय दहिंदों ने उनको फूल भी पहनाए। सपोटा बाग में कांग्रेस के उम्मीदवार शेख अकबर के जलसे के मौके पर एक शख्स ने मौजूदा रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की सताइश की, जिसके साथ ही कांग्रेस के कायदीन ने स्टेज पर चढ़कर उनके हाथ से माइक छीन लिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया।
बजाय जो है एमआईएम में जो है एमआईएम इतना डेवलपमेंट लाए यहाँ पर। ठहरो एक सेकंड बोलने दो मेरे भाई, अरे हकीकत बोलने दो जी। आवार हो सलीम भाई, हकीकत बोलने दो, काम की बात करने दो। इज्जत से कुछ बात गलत बोल रहे हैं क्या? विजय सिंह रेड्डी साहब गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं भाई जरा बात करने दो, हमारे लीडर से बात करने दो आप। अरे ठहर यार, उनसे बात करने दो। अरे बात तो कर रहे ना, अरे मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? ये हकीकत बोलो ना। अरे हमारे विजय सिंह रेड्डी साहब हकीकत बोलो, मैं बोल रहा हूँ। अरे आप सीनियर आदमी रह गए, आप सीनियर है ना? आप मुकामी के लोगों को बुलाए क्या? मुकामी लोगों को बुलाए, हम कांग्रेस में काम नहीं करें क्या? हम सीनियर है ना, बुलाए क्या? बोलो आप जो भाई बात करने दो उनसे। अशफाक भाई सीनियर ही लोग, इनके वालिद। लैंको हिल्स जंक्शन से ORR सर्विस रोड तक लिंक रोड के जोड़ने का काम जारी है। अरविंद कुमार IAS स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व शहरी तरक्की ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि नारसिंगी और पुपुलगुड़ा में 2.89 किलोमीटर की सड़क की तामीर की जा रही है, जिसकी मालियत 90 करोड़ रुपए है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल HP डेस्कटॉप लैपटॉप और CCTV कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन स्कूल कॉलेजेस कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए CCTV कैमरा HD क्लैरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।